یہ اتنا پر اعتماد آدمی کون ہے یہ؟ سلیمان شاہ کا بیٹا ارطغرل جنگ میں بہت ماہر ہے۔ یہاں مردہ جانوروں کی 2 کھالیں بیچنے آیا ہے۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس کی آنکھیں کسی اور چیز کی تلاش میں ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، ارطغرل غازی کے تیسرے سیزن میں خوش آمدید۔ پہلی قسط کے آغاز میں ارطغرل اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک جنگل میں گھوڑا دوڑا رہا تھا۔ اس دوران وہ اپنے دل میں دعا مانگتا ہے، اللہ کے 99 ناموں کے ساتھ جو ہمارے دلوں کو ایمان سے بھرتا ہے۔ یا رب، ہمارے اس پاک راستے میں آنے والے جالوں کو تباہ کر دے، دشمن کے سامنے ہمیں چوکنا کر دے۔ یا رب، ہماری تلواروں کو ذوالفقار جیسا بنا دے اور ہمارے دلوں کو حضرت علی کے دل جیسا بہادر بنا دے۔ ہم صرف آپ کے آگے جھکتے ہیں اور مدد مانگتے ہیں، ہمیں اکیلا مت چھوڑنا میرے اللہ۔ دوسری طرف ایک سپاہی آ کر اپنے سلجوق کمانڈر کو بتاتا ہے، ہم نے ارد گرد کو محفوظ کر دیا ہے جناب۔ کمانڈر کہتا ہے، بہت اچھے، ارطغرل صاحب کسی بھی وقت یہاں پہنچنے والے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد ارطغرل اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں پہنچ جاتا ہے، پھر وہ سب گھوڑے سے اترتے ہیں۔ ارطغرل سیدھا کمانڈر کے پاس جاتا ہے اور اس سے گلے ملتا ہے، پھر ارطغرل اور اس کے ساتھی کمانڈر کے پاس بیٹھ جاتے ہیں۔ کمانڈر کہتا ہے، ہمارے سلطان نے آپ کو سلام بھیجا ہے، وہ آپ کی خدمات سے بہت خوش ہیں۔ ارطغرل کہتا ہے، میں نے سنا ہے کہ وہ کوپک سلطان کا نیا وزیر بن گیا ہے۔ کمانڈر کہتا ہے، بعض دفعہ گندے لوگ گندے کاموں کے لیے درکار ہوتے ہیں۔ ارطغرل کہتا ہے، ریاست کو ہر وقت صاف ہونا چاہیے تاکہ کہیں ایک دن ہم اس کی گندگی میں گر کر ڈوب نہ جائیں۔ کمانڈر کہتا ہے، بلا شبہ ہمارے سلطان کے پاس کوئی منصوبہ ہوگا۔ ارطغرل کہتا ہے، مجھے بھی یہی امید ہے۔ پھر کمانڈر کہتا ہے، سلطان نے آپ کو ایک نئی ذمہ داری دی ہے، آپ کارا جیسر کے علاقے کو فتح کرو گے۔ یہ علاقہ بہت اہم ہے، اگر ہم اس علاقے کو فتح کر لیں تو ہم بیزنطین کی ساری زمینوں کو قسطنطنیہ میں شامل کر سکتے ہیں۔ ارطغرل کہتا ہے، ہم نے غداروں سے چھٹکارا حاصل کر لیا ہے، اب نئے علاقے فتح کرنے کا وقت ہے، اللہ کی مدد سے ہم اپنی پوری کوشش کریں گے۔ کمانڈر کہتا ہے، ہم یہ کام کسی کو خبردار کیے بغیر کریں گے، آپ کو وہاں بہت کمزور دکھنا ہوگا تاکہ کسی کو کوئی خطرہ محسوس نہ ہو۔ ارطغرل کہتا ہے، ہم ایک کمزور بھیڑ کی طرح دکھنے کا کام اچھے سے کر لیں گے۔ کمانڈر کہتا ہے، بہت اچھے، ہمیں قسطنطنیہ کے اندر سے خبر ملی ہے کہ صلیبی نئے حملے کے لیے تیار ہو رہے ہیں اور وہ ہمیں ان زمینوں سے نکالنا چاہتے ہیں۔ ارطغرل کہتا ہے، اور ہم ان زمینوں کو اپنا وطن بنانا چاہتے ہیں۔ کمانڈر کہتا ہے، اس دفعہ کچھ مختلف ہے ارطغرل صاحب، ہمارے تمام دشمن اکٹھے ہو گئے ہیں اور اپنی پوری طاقت سے ہمارے اوپر حملہ آور ہونا چاہتے ہیں۔ ارطغرل کہتا ہے، تو پھر ہم ترک اپنے خون کے آخری قطرے تک اپنے ملک کی حفاظت کریں گے، ہم بہت جلد حرکت میں آ کر ان کے حملے کو ناکام کر دیں گے۔ کمانڈر کہتا ہے، بہت اچھے، ہم بھی یہی چاہتے ہیں۔ دفاع دشمن کے علاقے سے شروع ہوتا ہے ورنہ ہم اپنا وطن کھو سکتے ہیں۔ اب میری بات غور سے سنیں، قسطنطنیہ میں موجود سلطان کا ایک جاسوس آپ کو ایک نام بتائے گا، یہ نام صلیبیوں کے جاسوس کا ہے، اس کا مقصد ہماری زمینوں پر صلیبیوں کے لیے راہ ہموار کرنا ہے۔ ارطغرل کہتا ہے، جب تک ہم اس جاسوس کو ختم نہ کر دیں ہم کارا جیسر کو فتح نہیں کر سکتے۔ سلطان کا آدمی مجھے کہاں ملے گا؟ عین اس وقت ایک تیر آتا ہے جو سیدھا اس کمانڈر کے سینے میں لگتا ہے۔ صلیبیوں نے حملہ کر دیا تھا، ایک سلجوق سپاہی کے علاوہ تمام سلجوق مارے جاتے ہیں اور وہ سپاہی ایک طرف بھاگ جاتا ہے۔ ارطغرل اس کمانڈر سے جاسوس کے بارے میں پوچھتا ہے، کمانڈر مرتے مرتے بتاتا ہے کہ وہ ہنلی بازار میں آئے گا۔ پھر ارطغرل سلجوق سپاہی کو بھاگتے ہوئے دیکھ کر دوندار کو کہتا ہے، اس غدار کو پکڑو۔ دوندار فوراً اس کے پیچھے بھاگتا ہے۔ ارطغرل اور اس کے ساتھی اپنی تلواریں نکال لیتے ہیں اور صلیبیوں کو مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ کچھ دیر کی لڑائی کے بعد تمام صلیبی مارے جاتے ہیں۔ دوسری طرف غدار سلجوق سپاہی بھاگ رہا تھا اور دوندار اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ وہ سپاہی بھاگتے بھاگتے ایک آدمی کے پاس پہنچتا ہے اور اسے کہتا ہے، تمہارے آدمیوں نے حملہ کر دیا ہے۔ وہ آدمی کہتا ہے، وہ ہمارے لوگ نہیں ہیں، وہ بیوقوف ازنک صلیبی ہیں۔ پھر سلجوق سپاہی اسے بتاتا ہے کہ سلطان کا قسطنطنیہ والا جاسوس ہنلی بازار میں آئے گا اور وہ صلیبیوں کے ایک جاسوس کا نام بتائے گا۔ وہ آدمی پوچھتا ہے، کس کو بتائے گا؟ لیکن عین اس وقت دوندار تیر سے اس کا نشانہ بنا ڈالتا ہے اور وہ غدار سپاہی ادھر ہی گر کر مار جاتا ہے، لیکن دوسرا آدمی بھاگنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ دوندار واپس آ کر ارطغرل کو بتاتا ہے کہ اس غدار سپاہی نے ایک برقع پوش شخص کو سب کچھ بتا دیا ہے۔ ارطغرل پوچھتا ہے، کیا اس نے ہمارے نام بھی بتا دیے ہیں؟ دوندار ہنستے ہوئے کہتا ہے، اس کی زبان بند ہو گئی تھی جب میرا تیر اس کی گردن کے آر پار ہو گیا۔ ارطغرل بھی ہنسنے لگتا ہے اور کہتا ہے، بہت اچھے، تم نے ہمیں ایک بڑی مصیبت سے بچا لیا۔ ترگت کہتا ہے، ہمارے 2 الگ دشمن ہیں، پہلا وہ جس کو دیکھا جا سکتا ہے اور دوسرے نہ دکھائی دینے والے حرام زادے۔
अर्तुल कहता है, हमारी जंग अभी एक मुख्तलिफ मरहले पर है, हमें हर वक्त चौकन्ना रहना होगा। इस पाक रास्ते पर फतह हासिल करने के लिए हम उनके लिए अपने नए जाल बनाएंगे। पहले हम इन शहीदों को दफना लें, फिर हम हनली बाजार में जाएंगे। दूसरी तरफ कबीले में हकीम अर्तुक हकीम की नई जिम्मेदारी दरवेश को सौंप देता है। दरवेश कहता है, इंशाअल्लाह मैं लोगों के दर्द की दवा बनूंगा। आयमा खातून उसे मुबारकबाद देती हैं। इतने में अर्तुल का बेटा गुंदुज वहां से भाग जाता है, जो अभी बड़ा हो चुका था। आयमा खातून एक सिपाही को उसके पीछे भेजती हैं ताकि वो उसका ख्याल रखे। गुंदुज एक झूले पर चढ़ता है और फिर गिर जाता है। इतने में हलीमा भी वहां आ जाती है और उसे दिलासा देती है। इतने में हायमा खातून भी वहां आ जाती हैं और कहती हैं, लड़के इस तरह के तजर्बात से गुजर कर बड़े होते हैं बेटी, अगर तुम ऐसे ही इसको गले लगाकर दिलासे देती रहोगी तो तुम इसे एक बहादुर आदमी की बजाय एक बुज़दिल आदमी को परवान चढ़ाओगी। हलीमा खड़ी होकर कहती है, आप सही कह रही हैं वालिदा, गुंदुज भी अपने बाबा और चाचों की तरह बहादुर आदमी बनेगा। दरवेश इसहाक का पहला मरीज ये बना है। हायमा खातून पूछती हैं, हमारे पास माल की क्या सूरत हाल है? हलीमा कहती है, अगर अर्तुल आज खाली हाथ वापस आए तो हमारे लिए मुश्किलात बढ़ जाएंगी। इसके बाद हलीमा कबीले के लोगों में आटा तकसीम करना शुरू करती है और उन्हें एक कतार में लगने को कहती है। वो एक औरत के बर्तन में कुछ आटा डालती है और कहती है, अब अगले की बारी है। ये सुनकर वो औरत कहती है, इतने थोड़े आटे से हम कैसे गुजारा करेंगे? हलीमा कहती है, थोड़ा सब्र करो बाजी। फिर एक और औरत बोल पड़ती है और कहती है, और हम कितना सब्र करें? कितने महीनों से हम सब्र कर रहे हैं, लेकिन अभी भी हमें एक बर्तन में आटा मिल रहा है। हमारे जानवर ज़ाया हो गए हैं और पहाड़ों में शिकार के लिए कुछ भी नहीं है, हम भूखे हो गए हैं। इसके बाद बाकी सब लोग भी शोर मचा देते हैं और कहते हैं, हम कहाँ से अपनी रोटी तलाश करें? कुछ देर सुनने के बाद हलीमा आगे आती है और कहती है, अर्तुल ने आपसे ये वादा नहीं किया था कि आपको कांटों के बगैर फूल दिए जाएंगे। उन्होंने कहा था कि हमारा रास्ता मुश्किल है, अब तुम लोगों को क्या हो गया है? फिर बानो जुजी गुस्से से बोल पड़ती है और कहती है, ये अर्तुल साहब का ही रास्ता है जिसकी वजह से हम इस सूरत हाल में हैं। अब मुझे बताओ, कौन सा शख्स है जिसने भूखा रहने के लिए कबीला छोड़ा था? हलीमा कहती है, दवान अल्प ने बगैर किसी हिचकिचाहट के अर्तुल के लिए अपनी जान दे दी और तुम यहाँ इस तरह की बातें कर रही हो। अपनी हद में रहो बानो जिजिक, हमारे पास यही माल बचा है। तुम चीज़ों को ऐसे मत बढ़ाओ ताकि हम सुकून से खा सकें। जिनको एतराज़ है वो जा सकते हैं। फिर बानो जिजिक वहाँ से चली जाती है और हलीमा दोबारा लोगों को आटा बांटने लगती है। इसके बाद हनली बाजार का मंजर सामने आता है। इस बाजार में बहुत से गंदे धंधे भी होते थे। अर्तुल और उसके साथी भी इस बाजार में पहुंच जाते हैं ताकि सुल्तान के जासूस से मिल सकें। धुंधार पूछता है, इस बाजार में आप सुल्तान के जासूस को कैसे तलाश करेंगे? अर्तुल कहता है, अगर आपकी आंखें ये ना पहचान सकें कि कौन आपकी तरफ है और आपका दिल ये ना जान सके कि आप किसके साथ चल रहे हैं, तो फिर आप पहले ही जंग हार चुके होते हैं। इस दौरान घोड़े पर बैठा एक आदमी बुलंद आवाज में कहता है, इस बाजार का मालिक सिमन है, आओ आप भी उसके पास चलो। वहाँ बहुत उम्दा घरेलू चीजें हैं और बहुत लजीज खाने हैं जो आपका इंतजार कर रहे हैं। अर्तुल भी कुछ देर उसका जायजा लेता है और फिर एक तरफ बढ़ जाता है। दूसरी तरफ सलेबियों का वो अहम जासूस मौजूद था। ये सुनकर वो शदीद गुस्से में आ जाता है कि उसकी शनाख्त अब राज नहीं रही। उसका नाम सिमन था और यही अनली बाजार का भी मालिक था। सिमन कहता है, ये लाजमी हमारे उस्ताद आजम के आदमियों की गलती है, उनको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं ये मसला जल्द से जल्द बड़ी कौंसिल में लेकर जाऊंगा। दूसरा आदमी पूछता है, अब हम क्या करेंगे जनाब सिमन? सिमन कहता है, हम कुंस्तांतिनिया में सुल्तान अलाउद्दीन के जासूस को पकड़ने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। आदमी कहता है, बाजार आज खुला है, वहाँ हजारों आदमी होंगे, हम उसको कैसे पहचानेंगे? सिमन कहता है, सुल्तान का जासूस कोई आम आदमी नहीं होगा, उसने अपना बेस किसी काबिल एतबार आदमी की तौर पर बदला होगा। उसका सबसे बेहतरीन काम घुड़सवारी होगा। सिमन का आदमी कहता है, आपकी अक्ल खौफजदा करने वाली है जनाब सिमन। ये सुनकर सिमन मुस्कुराने लगता है। फिर वो कुर्सी पर बैठकर कहता है, बाजार की तरफ जाने वाले रास्ते पर एक जाल बिछाओ और उस रास्ते पर आने वाले घुड़सवार को अपने पंजे में दबोच लो। दूसरी तरफ अर्तुल और उसके साथी बाजार में मौजूद थे। काफी सारे लोग एक जगह इकट्ठे हुए थे। फिर वो घोड़ों से नीचे उतर आते हैं। थोड़ी देर बाद उस बाजार का मालिक सिमन निकलकर बाहर आता है, जो दरअसल सलेबियों का अहम जासूस था। वो एक स्टेज पर खड़ा होकर सबसे मुखातिब होकर कहता है, हमने लंबी सर्दियां गुजार ली हैं, हमारी जेबें सोने के लिए भूखी हैं। हमारा बाजार और मेहमान खाना आपकी खिदमत के लिए है, लेकिन यकीनन आपके पास बेचने के लिए चीजें होनी चाहिए या फिर आपके पास चीजें खरीदने के लिए सोना होना चाहिए। ये सारी बातें अर्तुल भी गौर से सुन रहा था। फिर सिमन कहता है, यहाँ पर आपको कुंस्तांतिनिया से लेकर चीन तक महंगी से महंगी चीजें मिलेंगी। ये बाजार सिमन का बाजार है। इसके बाद वहाँ मौजूद लोग सिमन जिंदाबाद के नारे लगाने लगते हैं। फिर सिमन कहता है, मेरी बहन मारिया ने आप सब के लिए एक बहुत बड़ी दावत का इंतजाम किया है, आप सब इसमें शमूलियत करें। इतने में अर्तुल के पास दो आदमी आते हैं। एक आदमी कहता है, काई कबीले के अर्तुल साहब, तो आप बाजारों में जाते हैं? अर्तुल कहता है,
जावेदार कबीले से औराल साहब, मैंने सुना है कि बाजारों में बहादुर आदमी देखने को मिलते हैं, इसलिए हम यहाँ आए हैं। औराल कहता है, क्या आप सिर्फ ये जानवरों की खालें बेचने यहाँ आए हो? इस बाजार की दुनिया को समझने की कोशिश करो अर्तुल साहब। लोग यहाँ टनों के हिसाब से चीजें लेकर आते हैं, चीन से लेकर हिंदुस्तान तक, और आप यहाँ 2 मुर्दा जानवरों की खालें बेचने आए हो। इस आदमी की तरफ देखो, ये हर रोज इतनी दौलत कमाता है जिसका आप अंदाजा भी नहीं कर सकते। जानते हो क्यों? क्योंकि ये आदमी अपना दिमाग तलवार की बजाय काम पर लगाता है। लेकिन मोहतात रहना, ये खालें मुफ्त में ही ना बेच देना, और कबीले में खाली हाथ वापस मत जाना। अर्तुल कहता है, औराल साहब, मैंने बहुत से ऐसे आदमी देखे हैं जो मेरी तलवार के नीचे अपना सारा सोना देने के लिए भी तैयार थे, लेकिन मैंने आज तक ऐसा बहादुर नहीं देखा जो सोने के बदले अपनी तलवार दे दे। औराल कहता है, इन लोगों को देखो, ये तलवारों और जंगों के पीछे नहीं भाग रहे। अब मैं चलता हूँ, लेकिन जो मैंने कहा है वो मत भूलना और मोहतात रहना। ये कहकर औराल चला जाता है। दूसरी तरफ सिमन के आदमी एक जगह गात लगाकर बैठे थे ताकि सुल्तान के जासूस को पकड़ सकें। सिमन ने उन्हें बताया था कि वो जासूस स्लेबियों के बेस में होगा, इसलिए जब एक घुड़सवार स्लेबियों के बेस में वहां से गुजरता है तो वो उसे गिरा लेते हैं और गिरफ्तार कर लेते हैं। सिमन का आदमी कहता है, इसके हाथ और मुंह अच्छी तरह बांध दो, हमें ये जिंदा चाहिए। दूसरी तरफ बाजार में धुंधार एक जगह पहुंचकर कहता है, खालें बेचने के लिए ये जगह मुझे अच्छी लग रही है। अर्तुल बामसी को कहता है, खालें यहाँ पर लगा दो। फिर अर्तुल कहता है, मैं इर्द गिर्द का जायजा लेने जा रहा हूँ, तुर्गो तुम गंदम बेचने वाले ताजरों को ढूंढो, और धुंधार ये जगह अब तुम्हारे हवाले है। दूसरी तरफ औराल सिमन के पास पहुंचता है और कहता है, सिमन साहब, मैं जानना चाहता था कि आप इतने सारे सोने से क्या करते हैं। सिमन कहता है, मुतजस्सिस होना अच्छी बात है। फिर सिमन खड़े होते हुए कहता है, मेरे पास आपके लिए एक अच्छी खबर है। कोनिया के एक ताजिर ने मुझे बताया है कि सादुद्दीन कोपिक सुल्तान का नया वजीर बन गया है। औराल मुस्कुराते हुए कहता है, इसका मतलब है अब पीछे मेरा एक सहारा पैदा हो गया है। सिमन कहता है, कोनिया से आने वाली चीजों के जिम्मेदार अब तुम होगे और काफी ज्यादा कमाओगे। औराल कहता है, अगर तुमने कुछ गलत ना किया तो तुम भी कमाओगे। इतने में सिमन अर्तुल को देखकर कहता है, ये इतना पुरएतमाद आदमी कौन है ये? सुलेमान शाह का बेटा अर्तुल जंग में बहुत माहिर है। यहाँ मुर्दा जानवरों की 2 खालें बेचने आया है। लेकिन मुझे लगता है कि इसकी आंखें किसी और चीज की तलाश में हैं। इसके बाद अर्तुल दूसरी तरफ चला जाता है और इधर उधर देखने लगता है। फिर वो दिल में दुआ मांगता है, यार अब मेरी मदद फरमा, मुझे वो आदमी दिखा दे जो सुल्तान ने भेजा है। इतने में सिमन के आदमी एक बंद डब्बे में उस आदमी को लेकर जा रहे थे जिसको उन्होंने घोड़े से गिराकर पकड़ा था। वो आदमी अंदर से अर्तुल को देख लेता है, लेकिन वो बोल नहीं सकता था क्योंकि उसका मुंह बंधा हुआ था। अर्तुल भी गौर से डब्बे की तरफ देखता है। इतने में सिमन के आदमी डब्बा लेकर उसके करीब से गुजर जाते हैं और यहाँ इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है।